سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں 2 آپریشنز 6 خارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں خارج کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی گئی، 5 خارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ جنوبی وزیرستان میں خفیہ اطلاع پر ایک اور کارروائی کی گئی، خارج کا سرغنہ ذبیح اللہ مارا گیا۔ خارج کا سرغنہ سیکیورٹی فورسز معصوم شہریوں کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھا۔ وزیراعظم سے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم کی ملاقات۔ شہباز شریف کا اقتصادی روابط پر مبنی برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ صدر UAE شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے لیے خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مختلف شعبوں میں متحدہ عرب امارات کی مسلسل حمایت کی تعریف۔ دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعاون کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم کا تجارت، سرمایہ کاری، توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ 2 طرفہ تعلقات سمیت علاقائی صورتحال اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کی UAE میں پاکستانی کمیونٹی کے تعاون کی ستائش۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات۔ دونوں ملکوں میں مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ ثقافتی تعاون اور قونصلر امور کے لیے مشترکہ کمیٹی کے قیام سے متعلق معاہدہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی UAE کے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ خطے سمیت عالمی منظرنامے پر تبادلہ خیال کیا۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم کے اعزاز میں وزارت خارجہ میں استقبالیہ دیا گیا۔ پاکستان اور UAE بہت سے منصوبوں پر مشترکہ کام کر رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ اسحاق ڈار کا استقبالیہ تقریب سے خطاب۔ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس روانہ ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے انہیں رخصت کیا۔ آگے بڑھیں گے۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس انتقال کر گئے۔ پوپ فرانسس کی عمر 88 برس اور کافی عرصے سے علیل تھے۔ ویٹیکن سٹی اعلامیہ کے مطابق پوپ فرانسس ڈبل نمونیا کا شکار تھے۔ انتقال ویٹیکن سٹی میں ان کی رہائش گاہ پر ہوا۔ پوپ فرانسس نے 2013 میں چرچ کی قیادت سنبھالی۔ وہ رومن کیتھولک چرچ کے پہلے لاطینی امریکی رہنما تھے۔ رومن کیتھولک چرچ کے سربراہ پوپ فرانسس ڈبل نمونیا کا شکار ہو کر انتقال کر گئے۔ جارج ماریو برگوگلیو 17 دسمبر 1936 کو بیونس آئرس میں ایک اطالوی تارکین وطن خاندان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کیمیکل ٹیکنیشین کے طور پر کام کیا۔ 1958 میں مسیحی مذہبی آرڈر میں شامل ہو گئے۔ 21 سال کی عمر میں نمونیا کے باعث ان کے ایک پھیپھڑے کا حصہ بھی نکالنا پڑا تھا۔ انہوں نے 2001 سے 2013 تک بیونس آئرس کے آرچ بشپ کے طور پر خدمات انجام دی۔ جارج ماریو برگولیو نے 13 مارچ 2013 کو پوپ فرانسس کے طور پر چرچ کی قیادت سنبھالی۔ اس عہدے پر وہ پہلے لاطینی امریکی پوپ تھے۔ انہوں نے ویٹیکن کی روایتی پرتعیش زندگی سے انکار کرتے ہوئے سادگی اور عاجزی کو ترجیح دی۔ پوپ فرانسس نے اپنے دور میں چرچ کو جنسی سکینڈلز اور اندرونی کشمکش سے نکالنے کی کوششیں بھی کی۔ وہ غریبوں کے ہمدرد، مہاجرین کے حامی اور بین المذاہب مکالمے کی زبردست داعی کے طور پر دنیا بھر میں معروف ہوئے۔ ویٹیکن کے مطابق پوپ فرانسس کی آخری رسومات ان کی وصیت کے مطابق بیسیلیکا آف سینٹا میریا میگیورو میں ادا کی جائیں گی۔ وہ پہلے پوپ ہوں گے جنہیں ویٹیکن کے باہر دفن کیا جائے گا۔ ان کے انتقال کے بعد نئے پوپ کے انتخاب کے لیے کارڈینلز کا اجلاس جلد منعقد ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سمندر پار پاکستانیوں کے امور پر خصوصی اجلاس۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء اور متعلقہ سرکاری افسران کی شرکت۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اعلان کردہ سہولیات کے حوالے سے پیش رفت اور حکمت عملی پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اوورسیز بیرون ملک پاکستان کے سفیر کا کردار ادا کرتے ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں کی ملک کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں نے دنیا بھر میں محنت کر کے اپنا اور اپنے ملک کے لیے نام کمایا۔ حکومت پاکستان نے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ایک بڑا پیکیج دیا ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کو ان کی خدمات کے پیش نظر سول ایوارڈ دیا جائے گا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا 27 اپریل کو مینار پاکستان پر بڑے جلسے کا اعلان۔ مینار پاکستان پر جلسے میں فلسطین سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ اتحاد امت کے نام سے ایک پلیٹ فارم تشکیل دے رہے ہیں۔ فلسطین کی صورتحال امت مسلمہ کے لیے باعث تشویش ہے۔ 27 اپریل کو یہاں لاہور مینار پاکستان پر ایک بہت بڑا جلسہ بھی ہوگا، مظاہرہ بھی ہوگا۔ اس وقت تو ایک پلیٹ فارم ہم تشکیل دے رہے ہیں جو مجلس اتحاد امت کے نام سے ہے۔ سندھ کے لوگ اگر وہاں پر اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی صوبے کے عوام کو اپنے صوبائی حق کے حوالے سے بات کرنے سے نہیں روک سکتے۔ ہم یہاں مرکز میں تمام صوبوں کو بٹھاتے
तमाम सूबों के इश्तराक के साथ, इत्तेफाक राय के साथ इस तरह के फैसले करते। जमात इस्लामी का अपना एक मौक़िफ़ था कि हम 26वीं आइनी तरमीम को पसंद नहीं करते थे और हमने इसको कुल्लियतन मुस्तरद किया था। धांधली हुई, बल्कि धांधला हुआ, लेकिन फौरी तौर पर नए इलेक्शन का मुतालबा जमात इस्लामी नहीं कर रही। मुल्क में आइन और जमहूरियत को प्रिवेल करना चाहिए, बालादस्ती उसकी सबको कबूल करनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि जेयूआई और जमात इस्लामी के इतिहाद से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, सिर्फ एक जमात की जानिब से मामूली नौयत के सियासी बुलबुले बनते हैं। मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी का इतिहाद सियासी तौर पर खुश आइंद है। दोनों जमातें माजी में भी मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से काविशें कर चुकी हैं। सिंध के पानी की तकसीम पर एतराज़ात को ब्लैक मेलिंग नहीं समझता। पानी की तकसीम के हवाले से खदशात पर ज़रूर बात होनी चाहिए। हुकूमत पर कोई 100-200 अरब रुपए का बोझ पड़ भी जाए, किसान की फलाह होनी चाहिए। हुकूमत अब वो काम कर रही है, ये बात तो ठीक है। इस हद तक देखना पड़ेगा कि गेटिंग आउट ऑफ वीट, गंदम से हुकूमत का निकलना, फूड डिपार्टमेंट को ख़त्म करना, अब ये 70 साल तक तो था कि ये ऐसे है और फार्मर भी इसका आदी था, हुकूमतें ये बोझ उठाती भी थी। अब ये बड़ी कन्वेंशनल अप्रोच थी। अब फार्मर से एक चीज़ है कि गंदम ख़रीदना और एक है कि उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। तो हुकूमत को अब ये देखना है कि अगर हुकूमत इस चीज़ में से बाहर निकली है, सपोर्ट प्राइस को ख़त्म किया है, तो अब हुकूमत को सिर्फ ये सब्सिडीज़ के मॉडल पे नहीं, हुकूमत को अब एक्चुअली इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा। हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, वो इत्तेहाद सियासत के लिए अच्छा होगा, सियासी बातचीत होनी चाहिए, लेकिन रेस्ट एश्योर की हुकूमत के लिए कोई सीरियस चैलेंज इस वक्त है नहीं। दो बुनियादी वजह, मईशत बेहतर हो रही है, महंगाई पे काबू पाया जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम ने असर-ए-नौ साफ और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि धांधली के नतीजे में कायम मरकजी और सूबाई हुकूमतें आवाम के मसाइल के हल और अमन व अमान के क़याम में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। जेयूआई की मरकजी मजलिस अमूमी के इजलास का एलामिया जारी। इजलास ने अपने प्लेटफॉर्म से सियासी जद्दोजहद जारी रखने और बाकायदा किसी भी सियासी इत्तेहाद में ना जाने का फैसला किया। मुश्तरका अमूर पर मुख्तलिफ मजहबी और पार्लिमानी अपोजिशन जमातों के साथ जद्दोजहद की हिकमत अमली मरकजी मजलिस शुरा या फिर मरकजी मजलिस आमला तय करेगी। इजलास के शुरका ने माइंस एंड मिनरल्स बिल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। बलूचिस्तान में पार्टी के जिन अरकान असेंबली ने इस बिल को वोट दिया, उनसे वजाहत तलब की जाएगी और उन्हें बाकायदा शौकौस नोटिस दिया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने जेयूआई के साथ इत्तेहाद न होने के मामले पर रद्द-ए-अमल में कहा कि जेयूआई एक बड़ी जमात है, उनका जो भी फैसला होगा कबूल होगा। हमारे पास ऑफिशियल उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया। असलम गौरी ने बयान दिया कि कुछ फैसले किए हैं, जेयूआई की प्रेस रिलीज के बाद अपना रद्द-ए-अमल हम देंगे। अफवाहें आ रही हैं कि जेयूआई ने आप लोगों के साथ इत्तेहाद ना करने का फैसला किया है, तो इस पर क्या अपडेट्स हैं? देखिए, जेयूआई बड़ी अच्छी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उनका अपना एक मजलिस आमला है, उनके जो भी डिसीजन होगा, पर एज़ वी स्पीक हमारे पास उनकी तरफ से ऑफिशियल कुछ नहीं आया है। मैंने भी ये सुना है कि सोर्स के ज़रिए से ऐसी खबर दी गई है, पर असलम गौरी साहब ने भी उसको स्टेटमेंट दी है कि हमने कुछ फैसले किए हैं, लेकिन अभी उस पर कोई भी लोग जो है स्पेकुलेशन ना करे और हम उसका एक प्रेस रिलीज़ इशू करेंगे। जब उनका फॉर्मल डिसीजन हमारे पास आएगा, फिर उस पर हम अपना रद्द-ए-अमल देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी और दीगर सब सियासी कैदी हैं। हम सिर्फ अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। मुझ पर बिस्किट चोरी तक के केसेस लगाए गए। हम रियासत का हिस्सा हैं। जो तारीफ़ ये लोग करते हैं रियासत की, वो यकसर मुख्तलिफ है। तो एक शख्स का हक होता है जिसको जेल के अंदर रखा गया, और बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब या बुशरा बीबी, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, हमारी बहन आलिया हमजा साहिबा भी, और साथ हमारी बलूचिस्तान से तरीन साहब, हमारे सदाम तरीन, ये सब के सब सियासी प्रिजनर्स हैं। अभी हैसियत अपोजिशन लीडर मुझ पर भी बिस्किट चोरी तक के वो केस बनाए गए हैं। हम लोग अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और क्या करेंगे। हम लोग पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, और मैं बार ये रिपीट करता होता हूँ कि आप आर्टिकल 7 आइन का पढ़ें, तो उस पर वाज़ेह तौर पर रियासत की डेफिनेशन लिखी हुई है। कई लोग कहते हैं कि जी रियासत मुखालिफ नारे या रियासत मुखालिफ
बातें करें। तो उनको मैं कहता हूँ उन अकल के अंधों को कि भाईजान ज़रा मुताला कर लिया करो आइन का, अच्छा होगा आप सारों के लिए, पढ़ भी लेंगे, कुछ सीख भी लेंगे उस आइन से। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने लंदन में क़याम बढ़ा दिया। सराय के मुताबिक डॉक्टर्स के मशवरे पर नवाज शरीफ के लंदन में क़याम में तोसी की गई। डॉक्टर्स ने साबिक वज़ीर आज़म को मज़ीद टेस्ट कराने का मशवरा दिया। नवाज शरीफ ने वापसी की टिकट भी रीशेड्यूल करा ली है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुराद अली शाह, वक़ार मेहदी, आजिज़ धामरा की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में सियासी तंजीमी और इंतज़ामी सूरत हाल से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की गई। पीपी चेयरमैन से शाज़िया मरी और शर्जीलिना मेमन में भी मुलाकात हुई। जमहूरी और आवाम दोस्त बयानी के फ़रोग़ की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो से सोहेल अनवर सयाल की भी मुलाकात हुई। हल्के में अवामी मसाइल और उनके हल से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की मरहूम ताज हैदर की रिहाइशगाह आमद, अहलिया नाहिद वसी से ताज़ियत का इज़हार किया। दिलचस्प खबर यह है कि रहीम यार खान के सहराई चोलिस्तान में नायाब जंगली बिल्ली देखी गई है। वाइल्ड लाइफ ऑफिसर के मुताबिक नायाब जंगली बिल्ली चंकारा हिरन के झुंड के करीब मंडलाते हुए देखी गई और नायाब जंगली बिल्ली सहराई जानवरों, परिंदों, खरगोश और दीगर जंगली जानवरों का शिकार करने में महारत रखती है। नायाब बिल्ली 5 से 7 फीट तक उड़कर शिकार करने में महारत रखती है। वाइल्ड लाइफ ऑफिसर ने नायाब बिल्ली को अपने फितरी मस्कन में देखकर उसकी वीडियो बना ली। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन से दोबारा टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों ने पानी के मसले पर मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि तमाम मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। वाटर कार्ड के मुताबिक किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। पानी के मसले का हल इंतज़ामी और टेक्निकल बुनियादों पर किया जाएगा। किसी सूबे की इस हवाले से हक तलफी नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। मरियम नवाज़ का गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए का मजमूई पैकेज, गंदम के काश्तकारों के लिए 25 अरब रुपए की वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी पैकेज की मंजूरी। पंजाब के अलावा किसी भी सूबे में गंदम के काश्तकारों को सब्सिडी या काबिल ज़िक्र इमदाद नहीं दी जा रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर गंदम के काश्तकारों को 5,000 फ़ी एकड़ मिलेंगे। गंदम के 5 एकड़ पर गंदम के काश्तकारों को 25,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा फ्लोर मिल्स को कम से कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाने के लिए लाजमी तरमीम की गई है। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रीसेट पॉलिसी की मंजूरी, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सूबाई वज़ीर ज़राअत को गंदम खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग करने की हिदायत कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब में किसानों को उनका हक दिया जा रहा है। हुकूमत ने अपने किसानों को लावारस नहीं छोड़ा है। किसानों को 10 अरब की सब्सिडी देकर ट्रैक्टर फराहम किए गए। पंजाब हुकूमत ने किसान कार्ड का इजरा भी किया। वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा कि हमारे हाजी VVIP की तरह हज करेंगे। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा सऊदी हुकाम की तरफ से मसावी इंतज़ामात किए गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी कोई कमी कोताही नहीं बरतेंगे। जो भी कुछ हुआ है उसमें सऊदी हुकाम नहीं, पाकिस्तान की कोताही है। जिस मद में पोर्टल के ज़रिए जो पैसा गया है वो ज़ाया नहीं होगा। इस्लामाबाद में सालाना हज कॉन्फ्रेंस से वो खिताब कर रहे थे।